Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is about the universe's plan for you next in career, finance and love life. तो इस बारे में reading है. Let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition. And if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have number 33, your soul knows. Pile 2 we have your mind, your body, your soul number 22. Pile 3 we have 44 number trust the call. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. एंड अभी स्क्रीनशॉट भी अगर 3 कार्ड्स का थोड़ा पास है. एंड आई जस्ट रियलाइज कि ये डबल नंबर्स है 33, 22, 44. लाइक आफ्टर ये कार्ड्स आए शफल करने के बाद 3, सो फिर आपके सामने रखे, बट पहले मेरा ध्यान नहीं गया, अब गया है कि 33, 22, 44 ऐसे double numbers निकले हैं. So most probably you guys are seeing double numbers or maybe triple numbers like 111. Angel numbers you're seeing 1212, 444, like you're seeing such numbers as well. So again यहाँ पर अभी आएगा screenshot इन cards का थोड़ा पास से, तो तब आप इस video reading को pause कर सकते हो. And you can close your eyes, take a deep breath, release, open your eyes and then see कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, तब आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 2 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 3 को आपने पिक करना है. ऐसे आपने अपनी पाइल डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग भी आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं. कोशिश ये रहे कि पहले इंट्यूटिवली डिसाइड करें पाइल को, बट अगर एक से ज़्यादा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको आपके लिए ग्लो करे, तब आपने जो है अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पाइल पिक करना है. सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose your soul knows card or you picked this pile because आपका बर्थडे 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. Universe's plan for you next in career, finance and relationship. So सबसे पहले हम करियर के बारे में ही कार्ड्स पुल करेंगे. पाइल नंबर 1 का करियर. क्या यूनिवर्स का इंटेंट और इंटेंशन है? क्या वो फर्म रिजॉल्व है? क्या वो क्लियर पर्पस है आपके लिए? पाइल 1. Okay. We have 4 of wands. Wonderful. I mean, this shows me that you guys are gonna somehow make connections with light people, light community, posh people, posh जगह आप जाते हैं नज़र आ रहे हो, and you are getting connected to the wealthier population. All right. Somehow, some way, the universe wants you to connect with the light, and you will be. This is the plan of the universe for you कि light लोगों से आपका मिलना जुलना होगा. And we have the Justice card as well, which shows that finally career related जो चीज़ें हैं उसमें आपको justice serve होगा, ये यहाँ पर दिख रहा है. All right, maybe you were putting efforts for something for a very long time and you were thinking, and when you were thinking कि कब जो है
मुझे अपने हार्डवर्क का फ्रूट मिलेगा. व्हेन विल दिस हैपन? एंड यू वर बैलेंसिंग काइंड ऑफ लाइक एवरीथिंग, चाहे वो हेल्थ है चाहे पर्सनल लाइफ है, यू वर बैलेंसिंग एवरीथिंग, और यू वर बैलेंसिंग मल्टीपल थिंग्स इन योर करियर, and you are doing a great job. You did a great job earlier as well, and now due to this somehow you will make connection with people who are working high up in the government, high up in some corporation, या again elite लोगों से आपका connection बनता है. Then we have Seven of Wands. It does shows that universe also tells you that there is someone who don't want you to succeed. There is some people out there जो आपका downfall चाहते हैं. Yes, there are certain people like that. And then we have Judgment, but eventually you are going to be the winner. Eventually this is going to happen. जो ये प्लानिंग प्लॉटिंग ये लोग करे, ये इनका जो है प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसा धरा क्या धरा रह जाएगा, एंड यू विल विन, यू विल बिकम द विनर. समहाउ जजमेंट जो होगा, जो जस्टिस आपके लिए सर्व ज़रूर होगा, जस्टिस विल बी सर्व्ड, जो जजमेंट पास होगा वो आपकी फेवर में होगा, ये यहाँ पर दिख रहा है. इवन मैनी ऑफ यू में लिटरली यू गाइज आर डीलिंग विद सम कोर्ट केस, एंड फाइनली दैट कोर्ट केस विल गेट रिजॉल्व्ड, and you of course would have learned a lot from that court case, and it will be in your favor. ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है. soon somehow you will be invited in some celebration, in some party, some invitation is there, और उस जगह पर you meet elite people. They can actually help you out in your career. They would genuinely want to get connected to you, or would want your betterment in career somehow, क्योंकि उससे उनका भी फ़ायदा है. All right, and Judgment card here does shows me, it shows that you can get some reward, some kind of achievement is there on the card. So the intent and intention is very clear of the universe, that it wants you to get some seat of power, it wants you to get good money, it wants you to get name and fame as well. All right, and then we have the Page of Swords, जो कि represent करता है कि it is going to be the beginning of your success. It is going to be the beginning of your success. Soon you will climb that social ladder or the corporate ladder, and somehow your status in society is increasing. Especially I feel that you can have a Leo Navamsha in your chart. Like there is this D1 chart, and then there is this D9 Navamsha chart, which is about life after marriage or life after the age of 35, strength of the planets. It represents who you are becoming. So वहाँ पर you can have some planets in Leo, या birth chart में भी planets Leo sign में हो सकता है, या फिर आप एक Leo rising individual हो गए नवामशा चार्ट में. नवामशा में ascendant में 5 नंबर की राशि बैठी होगी, Leo प्लेस्ड होगा ascendant में आपके नवामशा में. So this is something which you are getting. Leo it's about the throne of ancestor. It's about a throne basically. It's the seat of power. It's the kingly sign because it's ruled by sun. So कहीं ना कहीं Venus या ascendant lord या 10th lord या अमत्यकार का planet, the planet holding the second highest degree in your chart, वो कहीं ना कहीं Leo में placed होगा, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. But soon you will be invited to some big celebration or party in your career, ऐसा नज़र आ रहा है. और वहाँ पर you are somehow you get connected to elite people, and yeah, so this is something which is happening for you. Then about your finance, your money. Okay, we have 5 of Pentacles. 5 of Pentacles यहाँ पर show करता है that maybe you worked truly hard and you didn't got the money, you didn't got the desired result. Somehow आप का क्रेडिट कोई और ले भी गया, ऐसा यहाँ पर हुआ है पास्ट में. ये चीज़ ये 5 of Pentacles दिखाता है. And you were heartbroken that you did everything and now someone is taking away your credit. Then we have Page of Pentacles. It shows that someone was watching as well, that कोई था individual जो उस scene scenario को देख रहा था जहाँ पर someone else took away the credit, and that person knew that you were the one who was doing everything. So this person who knows that you were the one behind everything, you did everything, that person, I mean this person is going to help you out. This person comes into your life and they kind of really like or they appreciate what you're doing, and they have a proposal for you. They have an invitation for you. They have some reward for you. They have something big, some big project which they are going to give to you. And you feel that this is ये तो once in a lifetime opportunity है, and you
definitely grab this opportunity, I see, and you learn from it. Like, it is going to be a learning experience as well, but you also get money out of it because Pentacles is the energy of money. So ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. Someone know that you are the one who is doing everything. Someone know that you are the one who did everything and will do everything. You are, I would say, skilled individual, and they really like what you're doing. So they give you this project which you were not even expecting. All right. So ये चीज़ें कुछ यहाँ नज़र आ रही है. And about, relationship, about something related to relationship, love, romance, personal life. So we have the Sagittarius card. It says joy. Literally, Sagittarius represents some religious spiritual ceremony. It represents other people's wedding. So yeah, Sagittarius is about marriage, or I should say mandap. It represents the mandap. So if you are someone who want to get in a romantic relationship, who wants to marry, or you want love, romance in your life, then yes, you can meet someone in a party. Again, this Four of Wands represents party. Many times, Four of Wands represents the marriage mandap as well. So literally, you meet someone in someone's, you meet your life partner, or you meet someone who you get in a romantic relationship with in someone else's wedding, or in some big celebration, या कोई religious spiritual place पर आप किसी से मिलते हो, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. सेजिटेरियस हायर एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, पोस्ट ग्रेड एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो जब आप अपनी पोस्ट ग्रेड एजुकेशन ले रहे हो, जब आप अपनी कोई हायर एजुकेशन ले रहे हो, तो वहाँ पर यू आर मीटिंग समवन, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी रिलीजियस स्पिरिचुअल इन नेचर एज वेल. उनके पास भी कोई हायर एजुकेशन का डिग्री होगा. सेजिटेरियस कार्ड ये भी शो करता है, और साइन ये भी शो करता है that your you may meet your partner through your father, because Sagittarius is about father as well. You may meet your you may meet your partner through your father, or through some fatherly figure. All right. So ये indication आ रहा है. Then we have Cancer sign. It says protection. So many of you, for you guys, it can be an arranged marriage, because Cancer is about mother. Cancer sign is about home. So maybe in an arranged marriage, your partner comes at your place and you meet them for the first time when you are near your kitchen, because Cancer sign represents kitchen area, near kitchen area. So meet your partner there. Cancer sign also shows that you may meet your partner at a place जहाँ पर crabs बने हो, literally crabs बने हो, या जहाँ पर literally धनुष बाण बने हुए हों, ऐसे symbols बने हुए हों, moon बना हुआ हो, all right, ऐसे लहरें बनी हो, this can happen. ऐसी जगह पर आप अपने पार्टनर से मिलो, this can happen. Cancer sign shows that your partner is also going to be someone who's going to be nourishing in nature, emotionally available to you. ऐसे पार्टनर आपको मिलेंगे जो खुद भी थोड़ा कहीं ना कहीं emotionally sensitive in nature होंगे, but because we have Sagittarius sign as well, which is about wisdom, so this person is going to be emotionally intelligent as well, and they can be very good chef, they can be very good cook, they will know how much salt and pepper should be added in the curry, so whenever they cook the best meal. And this Cancer sign shows that they want to emotionally nourish you, and they want emotional compatibility with you. What matters to them is what matters to them who you truly are. They don't care about how you look. They care about your emotions, your thought process, your belief system. That matters to them the most. So yeah, this person, you will feel that they are not shallow people, they are very deep people. आप ऐसा महसूस करेंगे इस इंडिविजुअल के बारे में. एंड यू कैन मीट दिस पर्सन विद इन 4 weeks. ये जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी, करियर के बारे में हैं, चाहे फाइनेंसेस के बारे में हैं, ऑल राइट, फाइनेंशियली यू विल ग्रो, आई डू सी दिस. बट ये चीज़ें कब होगी? अभी से होना ये शुरू हो जाएंगे. जब आपने रीडिंग देखना शुरू करा, यू आर डेस्टाइन्ड टू हियर दिस रीडिंग. सो अभी से ही ये प्लान शुरू हो चुका है यूनिवर्स का, और ये आपको दिखना भी शुरू हो जाएगा इन कपल ऑफ वीक्स दैट दीज थिंग्स आर हैपनिंग. यू मे मीट दिस पर्सन विद इन 4 weeks. All right, this is the indication. All right, and this person can of course have some planets in their 9th house or 4th house, or you can have your Dharakarka planet holding the lowest degree in your chart. It can the planet which signifies your spouse, Dharakarka planet, it can be in the 9th house or 4th house, or it can be in the sign of Sagittarius or Cancer.
You can have moon as your dhara karak, या Jupiter आपका धारा कारक planet होगा, planet holding the lowest degree in your chart representing the spouse. या आपका धारा कारक it can be conjunct Jupiter or it can be conjunct moon, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. ये पर्सन जो है कैंसर राइजिंग या सेजिटेरियस राइजिंग इंडिविजुअल हो सकते हैं, या इस इंडिविजुअल के चार्ट में इस इंडिविजुअल के चार्ट में मून असेंडेंट में हो या फिर जुपिटर असेंडेंट में हो, जुपिटर मून का कंजंक्शन हो, या जुपिटर मून कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आपका मार्स मून का कंजंक्शन हो सकता है, मार्स मून ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं, या मार्स जुपिटर का कंजंक्शन हो गया, मार्स मून या फिर जुपिटर मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर होंगे, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे. ये प्लेसमेंट्स होगी, चेक करना पाइल नंबर 1. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 1. क्या यूनिवर्स का प्लान है, क्या इंटेंशन है पाइल नंबर 1 के लिए, यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं. सो वी हैव the artist, okay, expressing a dimension of life that is just beyond the 5 senses, inspiring others to see life symbolically. So I do see pile number 1 that universe wants you to see life in a different way. Like universe wants you to have a different perspective. थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल इन नेचर बनो, ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है. यू आर नॉट रियली लुकिंग एट थिंग्स in the way the universe wants you to look at things. Be more artistic, be more abstract, follow your passion. Even the universe says don't follow the beaten path, follow the unbeaten path. भेड़ चाल मत करो, जो दूसरे कर रहे वही मैं करूँगा, ये नहीं करना चाहिए आपको. बिकॉज यू आर नॉट मेंट फॉर दोज थिंग्स, यू आर मेंट फॉर समथिंग रियली क्रिएटिव, यू आर मेंट फॉर समथिंग विच इज़ अनयूजुअल, विच इज़ बियॉन्ड द 5 सेंसेस. मतलब जो चीज़ें शायद दिखती नहीं है, सुनाई नहीं पड़ती हैं, पर वो है, वो एग्जिस्ट करती हैं. ऐसी चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए. मे बी ऑन टैबू टॉपिक्स यू शुड फोकस. बेसिकली 8th हाउस चीज़ों पर, 12th हाउस रिलेटेड चीज़ों पर फोकस करना चाहिए. स्कॉर्पियो पाइसिस वाली एनर्जी पर फोकस करना चाहिए. स्कॉर्पियो इज अबाउट हिडन थिंग्स, टैबू टॉपिक्स, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, hidden things, emergency of other people, helping them out there. ऐसी चीज़ें जो दिखती नहीं है, हिडन है, लोग जिसके बारे में बात नहीं करते हैं. Pisces is about your other dimension. It's about your subconscious. It's about being artistic in nature. It represents psychology. It represents your past life. It represents spirituality, not even religion. It's about spirituality. Atma Paramatma, that is basically Pisces. तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं, इन एस्पेक्ट से आपको जुड़ने की ज़रूरत है. देन यू बिकम आर्टिस्टिक इन नेचर, देन यू बिकम अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल इन नेचर. सो यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू गेट कनेक्टेड टू दीज थिंग्स. ऑल राइट, यूनिवर्स इज गोना मेक यू एन आर्टिस्ट. Then we have slave, surrendering your power of choice to the divine with complete trust. तो ये इसका पॉजिटिव एट्रीब्यूट है, बट नेगेटिव एट्रीब्यूट ऑफ दिस स्लेव कार्ड इज that you are becoming a slave in other people's hand. People are controlling you. You will feel this, pile number 1. You're literally feeling this, that yes, people are controlling me. But you should not get controlled by other people. क्योंकि वो करवाएंगे आपसे जो आप नहीं करना चाहते हैं. So don't be a slave to other people. Alright, surrender to the power of divine. Give them your complete trust. And you will notice कि वो इस स्लेवरी से आपको हटा देंगे. यूनिवर्स आपको इस स्लेवरी से हटा देंगे, बट आपको यूनिवर्स के प्रोसेस को ट्रस्ट करना चाहिए. ये यहाँ पर गाइडेंस है. यूनिवर्स आपको सहनशीलता भी समझाएगा कि सहन भी कई जगह पर हमें करना पड़ जाता है और कई जगह पर अपना स्टैंड भी लेना होता है. Alright, so universe is going to make you learn a lot of things, lot of lessons as well. But universe tell you that don't become a slave to other people. Don't do something which you don't like. All right, the slave card here does shows that you are becoming a slave, so be aware of it, and इसके लिए आपको stand लेना चाहिए. Don't become a slave. Then we have child eternal. It says determination to remain your
remain young in body, mind and spirit, ability to see things with fresh eyes. Absolutely, yes. See things in a different manner. All right. And you need to remain young in your body, mind and spirit. Don't get old. Don't become unorthodox, or sorry, don't become orthodox and conventional in nature. Be unorthodox, be unconventional. जैसे बच्चा स्कूल जाने से पहले थोड़ा अलग होता है, जब वो स्कूल जाता है, उसे 10-12 साल हो जाते हैं स्कूल जाते हो, तो वो बिल्कुल बदल सा जाता है, कहीं ना कहीं वो रोबोट बन जाता है या वो स्लेव बन जाता है टू द सोसाइटी. उसकी सारी क्रिएटिविटी स्कूल मार डालता है. तो रिमेंबर योर पास्ट, पाइल नंबर 1. जो आप थे पहले वो याद रखो. यू वर सो क्रिएटिव, यू वर सो करेजस, यू वर द चाइल्ड एटर्नल. ऑलराइट, मतलब अंदर से हमेशा यंग, हमेशा. एटर्नल मीन्स हमेशा. मेरे खुद का नाम जो है अक्षता मीन्स एटर्नल, जो हमेशा है, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, जो एटर्नल है. राइट. So maybe your name can also be it can mean eternal, but this child eternal shows that be creative. जैसे बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं और बच्चे हर चीज़ को क्यूरियस वे में देखते हैं, जानने की कोशिश वो करते हैं. somehow जुपिटर मर्करी का कंजंक्शन हो सकता है. जुपिटर मर्करी कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर इन योर चार्ट, पाइल नंबर 1. या जुपिटर मर्करी अगेन कंजंक्ट हो सकता है, जो कि यही शो करता है दैट योर लाइफ लेसन्स विल कम थ्रू maternal aunts and uncles. यू आर गोना लुक वेरी यूथफुल इन अपीयरेंस. यू विल हैव ग्रेट इंटरेस्ट टुवर्ड्स लर्निंग. आप हायर एजुकेशन ज़रूर लोगे अपनी लाइफ में, पाइल नंबर 1. एंड दिस शोज मी कि एक पढ़ने की इच्छा, क्रियोसिटी आपके हमेशा मन में रहेगी. हमेशा कई नई चीज़ों को जानने की इच्छा आपके मन में हमेशा ही, सदा ही रहेगी. All right. And you are someone who can make other people happy whenever you enter some place. या हम कह सकते हैं आप जहाँ पर भी जाएंगे, अगर पार्टी में भी जा रहे हो तो आप पार्टी की जान भी बनेंगे, क्योंकि wherever you will go you will find or you will spread happiness because you are the child eternal. आपकी बहुत लाइट और माइट वाली एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है. इवन मर्करी अगर 3rd हाउस में, इट कैन हैपन, पाइल नंबर 1, इट कैन हैपन फॉर यू कि आपका मर्करी 3rd हाउस का है. 3rd हाउस मर्करी अगर मलेफिक से पीड़ित नहीं है ना, अगर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम मर्करी इन द 3rd हाउस कोई मलेफिक प्लैनेट नहीं है. मलेफिक होता है मार्स, केतु, राहु, सैटर्न, ये प्लैनेट्स नहीं है. मर्करी के ट्राइन में ये प्लैनेट्स नहीं है, और मर्करी के साथ कंजंक्ट भी ये पापी प्लैनेट नहीं है, और मर्करी 3rd हाउस का है. आप जान हो पार्टी की, आप अच्छी जीवन जीने वाले, हैप्पी लाइफ जीने वाले पर्सन हो. प्रॉब्लम आती भी है तो आप अपने सिबलिंग से या अपने दोस्तों से बात करके उस प्रॉब्लम को उड़ा सा देते हैं अपने जीवन से. ऑल राइट. सो आप बड़े खुश रहने वाले इंडिविजुअल है, जान है पार्टी की. This will be there. Then we have reflection. Reflection card here shows that reflect back what you have done in the past. Be grateful for what you have gotten in your life and what you have achieved. उसके लिए भी you should be grateful that universe gave you the opportunity to get those things. Then we have cleanse. Cleanse card here shows that it is also the time जहाँ पर you need to let go of the negativity. All right, this cleanse card shows that maybe you are going to start to take some healthy diet. You're going to start to follow some diet जिससे आप अपनी body को cleanse करते हैं, because what you eat is what you become. So maybe you are trying to eat more healthy. You are going towards cleaning your system. All right. और कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स को आप कैंसिल आउट करते हो. जैसे ही नेगेटिव थॉट आने लगता है वैसे ही आप कोई पॉजिटिव थॉट भी अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं. ये यहाँ पर शोर है. तो क्लेंजिंग का भी एक समय यहाँ पर नज़र आ रहा है. समथिंग मोर वी कैन गेट. सो वी हैव हैप्पीनेस कार्ड. मैं यही बात कर रही थी. ओह माय गॉड. फिर से एक फाइटर जेट गया. मार्स वीनस कंजंक्शन. मार्स वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. फाइटर जेट का कॉम्बिनेशन होता है. जो लोग आर्मी में है और उनका वीनस मार्स का कंजंक्शन है या वीनस मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, वो फाइटर जेट चलाते हैं. और उनकी लव मैरिज भी होती है.
सो हैप्पीनेस कार्ड यहाँ पर आया हुआ है जो कि शो करता है, अभी हम बात कर रहे थे कि आप हैप्पी गो लकी वाले इंडिविजुअल हो और आप खुशी वाली जीवन बिताओगे, दुख वाला जीवन या मन मार के चीज़ें नहीं करोगे अपने जीवन में। यही यूनिवर्स चाहता भी और यही यूनिवर्स का प्लान भी है कि आप खुश रहे और आपके अच्छे दोस्त भी बने। वी हैव अबंडेंस, तो यूनिवर्स आपको अबंडेंस वाले रास्ते पर लेकर जा रहा है बिकॉज यू डिज़र्व द बेस्ट। All right, literally pile number 1, you guys deserve the best, the universe knows it, and इस रास्ते पर आपको एक दो दोस्त भी मिलेंगे जो आपके पक्के पक्के दोस्त होंगे, पक्के दोस्त आपके लिए अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार होंगे। देन वी हैव सी बियॉन्ड द पास्ट, जो पास्ट में हुआ उसको, जो अच्छी चीज़ें उसको, उसके लिए ग्रेटफुल, जो अच्छी चीज़ें नहीं हुई उसको भूल जाओ। सी बियॉन्ड द पास्ट यानी कि ये मत सोचो कि मैं पहले भी फेल हो गया था इस चीज़ में, मेरा पहले भी कुछ नहीं बना था। ट्राई इट अगेन बिकॉज यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग पुनर्वसु नक्षत्र इन योर चार्ट, यू कैन हैव मून इन पुनर्वसु या योर आत्मा कारक planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to 30 degrees. It can be moon or it can be मार्स और इट कैन बी मर्क्यूरी। ऑल राइट, इनमें से कोई एक प्लानट आत्मा कारक प्लानट होगा और जो भी आत्मा कारक प्लानट होगा वो जेमिनाई या फिर कैंसर में प्लेस्ड होगा। तो जेमिनाई में भी पुनर्वासु होता है और कैंसर साइन में भी पुनर्वासु स्पिल करता है, विच ऑल्सो शोज दैट आपके एक दो दोस्त होंगे, ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे। और यही शो करता है कि रिपीटेटिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे लाइफ में टू अचीव समथिंग, वन स्टेप सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगा। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार में जाके आपको सक्सेस मिलेगा। सो गिव इट अ चांस, गिव अनदर चांस टू लाइफ, ये आपके लिए गाइडेंस है। यूनिवर्स का प्लान यही है, यूनिवर्स वांट्स टू सी यू एट अ वेरी गुड पोजीशन एंड दैट्स वाई दे आर गोना बी पीपल जो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दे नो दैट यू डिजर्व मोर, दे नो दैट यू हैव द पोटेंशियल टू बी ऑन अ पावरफुल पोजिशन, टू बी ऑन द थ्रोन। दैट्स वाई लोग आपको धकेलने की कोशिश करेंगे बिकॉज दे नो योर पोटेंशियल। बट आपको अपने आप को कम नहीं समझना है बिकॉज यू डिज़र्व द बेस्ट, यू डिज़र्व दैट पोजिशन, यू डिज़र्व द थ्रोन। ऑल राइट, सो यूनिवर्स का आपके लिए ये प्लान है, बी आर्टिस्टिक। अपना जो भी काम करते हो उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी का तड़का ज़रूर ऐड करो, उसमें अपना पर्सनल टच ज़रूर ऐड करो। पीपल विल डेफिनेटली जेन्युइनली विल अप्रिशिएट यू, पीपल हु आर जेन्युइन आपको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। और एलीट क्लास से आपका उठना बैठना उनके साथ आपका नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें कपल ऑफ वीक्स में होना शुरू होंगी, वैसे तो अभी से ही होना शुरू हो जाएंगी, पर दिखना लाइफ में ये चीज़ें विद इन कपल ऑफ वीक्स, मतलब ये चीज़ें होती हुई दिखेगी। मैनी ऑफ यू में स्टार्ट टू लिव इन सम कैपिटल, किसी कैपिटल सिटी में आप रहो, किसी स्टेट की कैपिटल में रहो, और मे बी यू गाइस में लिव इन न्यू दिल्ली, और बेसिकली कैपिटल में आप रहेंगे। सो किसी स्टेट के, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। इंडिया का तो कैपिटल न्यू दिल्ली, तो मे बी मैनी ऑफ यू में लिव इन न्यू दिल्ली, दिस कैन हैपन। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर यू। पाइल नंबर 1, एस्ट्रोलॉजिकली देखे तो मैंने कहा जैसे मून, मार्स या फिर मरकरी में से कोई एक प्लानट आत्मा कारक प्लानट होगा, प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट होगा। जैसे इवन जेमिनाई साइन, कैंसर साइन, सेजिटेरियस, पाइसीज, स्कॉर्पियो, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में। देन वी हैव पुष्या, अश्लेषा। स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। कैंसर में है सेजिटेरियस में वी हैव मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा। पाइसेस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस इन नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। All right, so that was pretty much it for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading for you. You chose the number 22, your mind, your body, your soul card, or you picked this pile because आपका birthday 2, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26 या 30, 31st को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. Universe's plan for you next in career, finance and relationship. So
क्या यूनिवर्स का इंटेंट है, क्या इंटेंशन है, क्या वो फर्म रिजॉल्व है, क्या वो क्लियर पर्पस है आपके लिए. पाइल नंबर 2. ओके, सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, ये करियर के लिए आया है. So 10 of Pentacles literally shows me that you're going to be that person who can take the family from rags to riches. You're going to be the one जो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप और अपने ancestors का नाम रोशन करेगा. Like we see the pictures of ancestors, we see the family pictures here. Your family is going to be truly proud of you, the way you're living. Like your family wants you to live like a king. Your ancestor wants you to live like a king because उन्होंने बहुत sacrifices किए हैं and they want कि उनकी जो next generations वो उनको वो sacrifices ना करने पड़े, उनको वो tough ज़िंदगी नहीं जीनी पड़े. And you are going to be that person who is taking the family from rags to riches. You are going to be the member in the family who is going to earn really well और जो बहुत अच्छी position पर जाएगा और एक बहुत अच्छा घर बनाएगा, बहुत अच्छा फैमिली क्रिएट करेगा और लाइफ के सभी सुख पाएगा. क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस का कार्ड है. तो अबंडेंस इज अबाउट हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में भरपूरता की महसूसता. ये अबंडेंस है. चाहे वो घर परिवार हो, चाहे खुद की हेल्थ हो, चाहे करियर है, चाहे मनी है, चाहे पावर और फेम है, ये सब आपको मिलेगा. ये 10 ऑफ पेंटिकल्स शो करते हैं. ये यूनिवर्स का इंटेंशन है आपके लिए, ये इंटेंट है यूनिवर्स का आपके लिए. तो करियर के लिए तो ये बहुत वंडरफुल कार्ड आया है. 10 ऑफ पेंटिकल्स है कि जल्द ही आप इसको अचीव कर पाएंगे. आप उसके रास्ते पर इनफैक्ट ऑलरेडी हैं ही, ये दिख रहा है. जिस रास्ते पर यूनिवर्स आपको चलवाना चाहता है उस रास्ते पर आप ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑलरेडी ही चल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि रास्ता बदलना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप करियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं और कर रहे हैं. Then we have 5 of Wands. This is about your finances. You feel that I have lot of ideas, I have visions, I am a visionary, all right, but somehow I don't have the money to create all that. I don't have the money to invest in my projects. So soon you're going to find investors. Soon you're going to find people who will help you out in making your vision come to reality. क्योंकि उस चीज़ से उनका भी फ़ायदा है. Alright, soon you're going to meet such people जिनका आप जैसा ही thought process है या जिनको आपका idea बहुत 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 अच्छा लगा है. Alright, so they are ready to invest money. Soon ऐसे लोगों से मुलाकात होगी. But you are also going to notice that they would want you to add something more into the plan which you will be a little stressed about, worried about. But eventually एक middle ground आपको मिल ही जाएगा. आप उनकी भी सुनेंगे, अपनी भी करेंगे. Alright, and you will create something wonderful. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. Then we have King of Swords. King of Swords ये आपकी पर्सनल लाइफ या रिलेशनशिप्स के बारे में रिप्रेजेंट कर रही है. कार्ड आपको आपकी पर्सनल लाइफ को बता रहा है. इट इज़ नॉट रियली शोइंग एनी लव रोमांस बट इट इज़ शोइंग मी विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कि यू आर वेरी क्लियर वॉट यू नीड टू से, वॉट यू नीड टू डू और वॉट पीपल यू वॉन्ट इन योर लाइफ. यू आर नॉट हेयर टू entertain people who demotivates you or who don't trust your vision. Like you don't want such people in your life, and because of this you will create healthy distance, healthy boundaries from them. आप कहोगे शायद मनी मन में ये इंसान मेरे लिए अब मर चुका है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेरे प्रति नेगेटिव है. मैं इसको अपना दोस्त या अपना रिलेटिव भी नहीं कह सकता हूँ, चाहे वो ब्लड रिलेशन ही क्यों ना. आप उससे बहुत एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं और अगेन यू आर क्रिएटिंग बाउंड्रीज विद देम. और कहीं ना कहीं थोड़ा फाइट आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. स्वॉर्ड्स की एनर्जी कटिंग और पियर्सिंग एनर्जी है. इट्स हियर टू कट समथिंग, पियर्स समथिंग. सो इट डज शोज विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, येस यू आर कटिंग सम पीपल फ्रॉम योर लाइफ. और कुछ एक दो दोस्त या एक दो लोग ही आपके बहुत करीब होंगे, उससे ज़्यादा वो लोग करीब नहीं होंगे. ज़्यादातर लाइक यू हैव अ क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, और क्लोज सर्कल फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसमें फैमिली भी हो सकते हैं, उसमें आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसमें मतलब कोई भी हो सकता है. वो बस एक क्लोज सर्कल है, दैट्स इट. जैसे यहाँ पर भी सी अ सर्कल ना, इवन इफ़ यू चोज दिस कार्ड
और मतलब ये पाइल को आपने कार्ड से सिलेक्ट करा और यू पिक दिस पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाटएवर इट इज, दिस कार्ड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर रीडिंग एंड हेयर एज वेल इट इज शोइंग मी अ सर्कल जिसके अंदर देयर इज अ पर्सन, राइट? सो यू हैव अ क्लोज सर्कल, और उस सर्कल में बस जो लोग हैं, उस बाउंड्री में जो कुछ गिने चुने लोग हैं, बस दे नो हु यू ट्रूली आर एंड दे आर द वन हु डिजर्व्स योर अटेंशन एज वेल एंड यू नो इट. सो यहाँ पर कोई लव रोमांस का तो इंडिकेशन नहीं आ रहा, बट यहाँ पर इंडिकेशन एंटरप्रेन्योरशिप का आ रहा है, यहाँ पर इंडिकेशन अपने खुद का बिजनेस करने का आ रहा है, यहाँ पर इंडिकेशन पावर और फेम का आ रहा है. ऑल राइट, अपनी पर्सनल लाइफ को आप सिंप्लीफाई करते चले जा रहे हैं. यू आर नॉट हेयर टू प्लीज अदर पीपल, यू आर हेयर टू डू वर्क, टू अर्न मनी, टू हैव you want to give a better living standard to your family or to your loved ones, and you yourself want to live a luxurious life. इन चीज़ों पर आपका फोकस है और यूनिवर्स का भी यही प्लान है कि आपको इन चीज़ों में सक्सेस दें. यूनिवर्स का प्लान और आपका प्लान बहुत सिमिलर है, ये बिल्कुल ही सिमिलर है, बिल्कुल ही सेम टू सेम है. सो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. समथिंग मोर इफ़ वी कैन गेट. पाइल नंबर 2, यूनिवर्स का प्लान क्या है पाइल नंबर 2 के लिए. सो वी हैव वर्गो कार्ड. वर्गो हेयर शोज मी दैट यू आर समवन जो अपनी लाइफ को डीक्लटर कर रहा है. यूनिवर्स का प्लान यही है कि आप अपनी लाइफ से वो लोग निकाल दीजिए जो अब आपका हायर पर्पस या आपको हायर पर्पस की तरफ ना आगे बढ़ाकर आपको पीछे धकेल रहा है, आपकी टांग खींच रहा है. आपको उन लोगों को निकालना चाहिए. वर्गो इज़ अबाउट कि हमें भीड़ नहीं चाहिए. वर्गो इज़ अबाउट कि हमें क्वालिटी चाहिए, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए. सो लेटिंग ऑफ दोज पीपल जो अगेन आपको ख़राब करते थे, आपके लिए नेगेटिव थे, आपके लिए अच्छे नहीं थे. फाइनली आपकी उनसे इमोशनल डिपेंडेंसीज ख़त्म होती है. वर्गो ऑल्सो शोज़ में कि डी क्लटर कर रहे हैं आप अपने घर को भी. भाई घर में ऐसी कौन सी चीज़ें जिनकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. घर में पुरानी तारें हैं, वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, पुराने फ़ोन है, कैमराज हैं, है ना. ऐसी पुरानी चीज़ें वो आप दे रहे हो या निकाल रहे हो घर से. ऑल राइट, अपनी जीवन में स्पेस बना रहे हो, अपने घर में स्पेस बना रहे हो नई ब्यूटीफुल चीज़ें लाने के लिए, या फिर शायद आप कुछ लाना ही नहीं चाहते, आप मिनिमलिज्म की तरफ जा रहे हैं. एंड यू विल फील मोर गुड व्हेन यू हैव मिनिमलिस्टिक थिंग्स एट होम, व्हेन यू हैव मिनिमलिस्टिक थिंग्स, मिनिमलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स योर बेडरूम. आपको सांस आता है, यू हैव रूम टू ब्रीथ. ऑल राइट, तो आप अपने जीवन को खाली करने में लगे हुए हैं सो दैट आप अच्छी नई सुंदर चीज़ें अपने जीवन में भर सकें. ऑल राइट, एंड इवन दिस वर्गो शोज़ में कि ऐसा जो नॉलेज या ज्ञान जो आपने भरा था अपने अंदर, बचपन से आपके अंदर फीडिंग गई थी उस ज्ञान की, जो आपने सीखी चीज़ें, यूर क्या कहे, अनलर्निंग इट, क्या टर्मिनोलॉजी आई डोंट रिमेंबर, मतलब जो चीज़ें आपने लर्न करी थी आप उसे अनलर्न कर रहे हैं बिकॉज यू फील कि अब वो चीज़ें ना वो आपको ख़राब कर रही हैं. सो यू आर लाइक अनलर्निंग सर्टन थिंग्स. एंड या जब एक नया गुरु भी आता है जीवन में, वो ये कहते हैं कि जो तुमने पहले सीखा है ना उस सभी को निकालो, तभी मैं ज्ञान भर सकूंगा तुम्हारी बुद्धि में. अगर कूड़ा कचरा भरा पड़ा है तुम्हारे दिमाग में तो मैं अच्छा ज्ञान भी दूंगा तो याद ही नहीं रख पाओगे, तुम उसको तुम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे. तो पहले खाली करो भाई, पहले दिमाग या दिल अपना खाली करो, तभी उसमें जगह होगी और मैं ज्ञान भर सकूंगा. तो उसी तरह अनलर्न कर रहे हैं आप सर्टन थिंग्स एंड यू आर लर्निंग थिंग्स विच यू विल फील दैट येस दे आर गोना बी हेल्पफुल टू मी. तो ज्ञान भी अपने अंदर डाल रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, पर पुरानी वेस्ट चीज़ों को भी अपने दिल दिमाग से, घर से, कमरे से निकाल रहे हैं. Then we have water, it says feel. So you are not someone जो बहुत एक shallow individual है, you're a very deep person, you're a deep thinker. आप कोई भी decision, कोई भी काम करने से पहले ये ज़रूर सोचते हो कि इस काम का क्या रिज़ल्ट होगा, क्या हो सकता है रिज़ल्ट. अपना prediction लगाते हो. आप कोई भी काम करते हो आप पहले सोचते हो भाई इसके क्या consequences होंगे. You're a deep person और आप हर चीज़ को deeply सोचते हैं और उसके बाद ही उसके प्रति effort करते हैं. आप इस तरीके के पर्सन हो. ऐसा नहीं है कि पहले काम कर लिया, एक्शन ले लिया और उसके बाद सोच रहे हैं भाई इसका क्या रिजल्ट होगा. नो, फर्स्ट यू विल थिंक अबाउट इसका क्या रिजल्ट होगा एंड देन यू विल टेक दैट एक्शन, विल मेक दैट डिसीजन. ऐसे आप इंडिविजुअल हो, यूर डीप थिंकर. तभी आपको चीज़ें डीपली अफेक्ट भी करती है क्योंकि आपकी आदत है हर चीज़ को डीप थिंक करने की. और ऑफकोर्स देयर इज अ गुड
गुड वे ऑफ एनालाइजिंग द सिचुएशन. बट नेगेटिव इस वजह से भी है ये कि आप हर बात को डीपली ले जाते हो क्योंकि आदत है. सो इस पर आप वर्क भी करेंगे. दिखता है वर्गो अगेन इट इज शोइंग मी कोई कंपटीशन हर्डल ऑब्स्टिकल या कोई कंपेटिटिव एग्जाम आप जल्द ही अभी से विद इन 6 वीक्स दे पाएंगे ऐसा दिख रहा है. बट कोई कंपटीशन हर्डल ऑब्स्टिकल से आप ज़रूर डील करेंगे. वर्गो रोग ऋण शत्रु हैं तो मे बी यू वर ऑल्सो डीलिंग विद सम बैड हेल्थ recently, but you will notice with the 10 of Pentacles, with your mind, your body, your soul, like everything is going to become better. Mentally you will feel good, body wise you will feel good, soul level पर भी आप अच्छा महसूस करेंगे. किसको हम अपने शरीर को तो खाना दे देते हैं, अपनी आत्मा को खाना नहीं देते. आत्मा का खाना ज्ञान है, नॉलेज है. आत्मा इस ज्ञान से भरपूरता की महसूसता करती है, अबंडेंट फील करती है. तो आप कुछ रिलीजियस, स्पिरिचुअल, नॉट रिलीजियस आई शुड से, स्पिरिचुअल कुछ आप करते हुए नजर आ रहे हैं. स्पिरिचुअल यानी स्पिरिट से रिलेटेड, सोल से रिलेटेड, सोल, फूड टू सोल आप दे रहे हैं. ज्ञान की बातें आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है. अपनी लाइफ को कैसे अबंडेंट बनाएं इस पर आपका फोकस है. आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं जो आपको ज्ञान का या जीवन जीने का ज्ञान देती है. आर्ट ऑफ लिविंग आप सीखते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. समथिंग मोर, क्या यूनिवर्स का प्लान है पाइल नंबर 2 के लिए? पाइल नंबर 2 के लिए. Okay, so we have networker. It says enhances unity through the sharing of information, social awareness and empathy. So this networker here shows कि आपका नेटवर्क बढ़ रहा है. आपके पास काफ़ी सारे ईमेल्स आते हैं और आप उन ईमेल्स का जवाब देते हैं. मैसेजेस आते हैं, आप उन मैसेजेस का जवाब देते हैं. आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं एंड अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं. बहुत सारे लोगों से आपका मिलना जुलना है और जितना आप लोगों से मिलते हैं उतना आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है. लोग आपकी फेवर में आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बिकॉज दे लव वॉट यू आर डूइंग और दे रियली लाइक योर विजन. दे सी अ वेरी ब्यूटिफुल फ्यूचर of your, they see that yes, you're going to become something wonderful in the future. They already know it. That's why they will invest money in what you're going to do. They will give you that money. वो आपको sponsor करेंगे ऐसा नज़र आ रहा है. Networker again shows that you're going to meet people who are not from a caste, not from a community or literally are foreigners. उन लोगों से आपका connection बनता है and again they somehow help you out in your career and you also will help them out in their career. All right, then we have servant. It says delight in serving others with a free and loving heart. Again, like I told you that you are also going to help other people. You are also going to serve other people and you are going to notice other people are also going to serve you, will be in service to you. एक हाथ से लो, एक हाथ से दो. तो बार्टर सिस्टम भी यहाँ पर हो रहा है कि आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरे आपकी मदद करते हैं. क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न. जिन लोगों से आप मिल रहे हैं सभी कामकाजी लोग हैं, सभी अपनी उन्नति चाहते हैं और सभी जो है एक फाइनेंशियल गेन चाहते हैं. तो ये भी मतलब ये भी किस्मत की बात होती है पाइल नंबर 2 कि आपको ऐसे लोग मिले जो काम करना चाहते हैं. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी सी इज पीपल डोंट वांट टू वर्क, दे डोंट वांट टू वर्क, बट यू आर गोना फाइंड पीपल जो वर्क करना चाहते हैं, जो कमाना चाहते हैं, जिनका अबंडेंट माइंडसेट है, जो ओपन माइंडेड है, जो क्रिएटिव है, जो रेवोल्यूशनरी है, जो एसेंट्रिक इन नेचर है आप ही की तरह. ऐसे लोगों से आपका मिलना ज़रूर होता है एंड यू विल सर्व देम, दे विल ऑल्सो सर्व योर हायर पर्पस. Then we have judgment. It says balancing justice and compassion, managing the fair distribution of power. Exactly. यहाँ पर we see the scales which shows कि balance आप करेंगे. मतलब आप जितना उनसे मटेरियल खरीदते हैं वो भी आपसे उतना मटेरियल खरीदते हैं. आप जितनी मदद करते हैं वो भी उतनी मदद करते हैं. आप दूसरों को बहुत राइट वे में जज कर पाते हैं कि हाँ ये काम करने वाला इंसान है और ये काम करने वाला इंसान नहीं है. यू विल बी एबल टू डू द राइट जजमेंट हेयर. आप जज कर पाएंगे लोगों को कि ये कैसा इंडिविजुअल है और वो जजमेंट सही होगा. All right, and then we have priest card. It says facilitate spiritual commitment, serves as a channel of spiritual energy. तो अभी हम यही बात कर रहे थे, यही हम बात कर रहे थे फूड टू द सोल. हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे, हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट को सर्व करती है, सोल को सर्व करती है. रिलीजन शरीर का होता है, धर्म शरीर का होता है. आत्मा को एज सच कोई धर्म नहीं होता है. आत्मा का हम कह देते हैं चलो स्वधर्म शांति है, पर उसका बेसिकली ऐसा नहीं होता ये आत्मा हिंदू है, ये आत्मा मुस्लिम है, ये आत्मा जो है पर ये आत्मा
क्रिश्चियन है, ऐसा नहीं होता। आत्मा का कोई ऐसा रिलीजन नहीं होता है। हाँ, पर आत्मा के संस्कार ज़रूर होते हैं, और उस संस्कारों अकॉर्डिंग वो जन्म लेती है अगला। उसके जो संस्कार, उसकी जो हैबिट्स होती है, उस अकॉर्डिंग उसको अगला जन्म मिलता है। वो डिसाइड करता है ये आत्मा किस धर्म की आत्मा है, और उस धर्म में जाकर आती या ये आत्मा किस धर्म में पैदा होने लायक है, उस धर्म में फिर वो पैदा होती है। पर एज सच आत्मा का कोई धर्म नहीं होता है। सोल इज़ अ सोल, वो परमात्मा का बच्चा है, आत्मा परमात्मा का बच्चा है। तो कहीं ना कहीं विद दिस प्रीस्ट कार्ड इट डज शोज दैट यू आर वेरी ब्रॉड माइंडेड, यू आर वेरी ओपन माइंडेड, यू आर रेडी टू वर्क विद पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, एथनिक बैकग्राउंड, कम्युनिटी, रेस. All right, this priest card shows that you are very knowledgeful, and somehow you may provide information, knowledge about soul, about soul and universe, about spirituality. You say things, you tell these kind of things to other people, and other people love to listen to what you are saying because they feel that what you are saying is absolutely correct. तो आप ज्ञान की बातें करते हो, सिर्फ काम की नहीं, बट कई बार एट टाइम्स आपका सर्कल, आपका नेटवर्क आपको स्पिरिचुअलिटी के भी बारे में बात करता हुआ देखता है, सुनता है, और आपसे कनेक्ट होता है. एंड पीपल लव योर पॉइंट ऑफ व्यू. सो that's also why they want to work with you, because they see that मतलब वो आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं, because they know कि you know karma philosophy, you know that if you do bad karma it is gonna come back to you. Karma always comes back, good or bad, what you do it will always come back. And people know कि आप गड़बड़ी नहीं कर सकते हो या आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते हो. That's why people trust you a lot. जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो ट्रस्ट पर ही चलते हैं, विश्वास पर चलते हैं. सो लोग आप पर विश्वास कर कर चलते हैं, ये यहाँ पर दिखता है. और आप भी विश्वास करते हैं. पहले जज करेंगे कि भाई ये इंसान है कैसा, एंड देन आप विश्वास करते हैं, और आपका जजमेंट राइट ही होता है. देन वी हैव एक्सेप्टेंस. आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज. सो एक्सेप्टेंस कार्ड यहाँ पर यही शो करता है दैट पीपल रियली दे आर एक्सेप्टिंग यू. लाइक यू maybe, you know, pile number 2, you felt disrespected, you felt that I don't belong in the society, in this world, because you know people are like this and that, they are different than me. But you will realize soon that there are also people who are like you, who thinks like you, and you will find your community, and then you will start to accept कि नहीं भाई, दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं, दुनिया में कुछ रियल लोग भी हैं, हर कोई चेहरा लगा कर नहीं घूम रहा है. वी जस्ट नीड टू you know, find the right people. All right. Then we have the inner conflict resolution. All right. This inner conflict resolution यही शो करता है कि कोई मन ही मन में आपका conflict चल रहा था, ऐसा करूँ वैसा करूँ, ये करूँ या वो करूँ. Finally you are able to decide what you need to do next, and जो आप चीज़ पिक करते हो इट इज़ वेरी डिफरेंट. क्योंकि स्नेक कार्ड इट इज़ शोइंग मी कि स्नेक जैसे केचुली छोड़ता है, अपनी स्किन छोड़ता है, उसे अपनी पुरानी स्किन से कोई ममत्व नहीं होता, कोई मोह, कोई अटैचमेंट नहीं होता. उसी तरह पायल नंबर 2, आप कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं, बदलाव लेकर आ रहे हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में, एंड यू आर रेडी फॉर दैट चेंज. यू फील दैट दिस इज़ हाई टाइम दैट आई शिफ्ट, दैट आई मूव, दैट आई चेंज. ऑल राइट. फाइनली आपने वो डिसीजन ले लिया, और ये बड़ा डिसीजन है जिसके बारे में आप बहुत टाइम से सोच रहे थे. फाइनली यू विल बी एबल टू डिसाइड दैट, एंड यू विल follow a very unorthodox path, unconventional path, the unbeaten path you're going to follow, you're going to work on. All right. Then we have the breakthrough card. So this breakthrough card here shows me that breakthrough is there, meaning कि finally जो है you are able to do what you always wanted to do, and finally आपके अंदर courage आ चुका है to you know come out of your shell, to come out of the problem, the situations you are in right now. तो एक breakthrough यहाँ पर है. finally कोई चीज़ का जो है सोल्यूशन हो गया है, कंक्लूजन निकल चुका है, एंड यू आर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी इन योर लाइफ.
maybe you're going from one place to the other, one country to the other, one company to the other. Then we have sadness card. Sadness card here shows me that आप of course कुछ पुरानी चीज़ें छोड़ रहे हो, maybe आप अपना घर छोड़ के जा रहे हो, परिवार छोड़ के जा रहे हो, बर्थ प्लेस छोड़ कर जा रहे हो, अपना कंफर्ट जोन छूट रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सैडनेस भी है, बट यू नो दैट द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, तो आप स्टिल छोड़ते हो और आप आगे बढ़ते हो. देन वी हैव इल्यूमिनेशन कार्ड. इल्यूमिनेशन हेयर शोज दैट यू हैव क्लैरिटी ओवर एवरीथिंग. यू हैव क्लैरिटी इन योर लाइफ दैट आई नीड टू डू दिस एंड आई डोंट नीड टू डू दैट. यू हैव द क्लैरिटी, राइट जजमेंट के साथ क्लैरिटी है. देन वी हैव मिस्ट्री. यू फील दैट टुमारो इज़ अ मिस्ट्री, past is the history, but you feel that I will be able to solve the mystery of tomorrow, of the future. You don't know what tomorrow or what future will unfold, how future will unfold, you don't know it, but you know this thing कि जो भी होगा वो बहुत अच्छा ही होगा. कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म आपके अंदर है, और यूनिवर्स का यही प्लान है कि आपको नई नई चीज़ों में लेकर जाए. यूनिवर्स का यही प्लान है कि आपको ज़्यादा आपके कंफर्ट जोन में ना रखा जाए, आप अपने कंफर्ट जोन से, अपने शेल से बाहर आकर चीज़ें करें, बिकॉज यूनिवर्स नोज दैट यू हैव सो मच पोटेंशियल विच इज़ स्टिल लॉक्ड अवे. यूनिवर्स नोज दिस, दैट्स व्हाई यूनिवर्स आपको एक कंफर्ट जोन से निकाल के एक हार्श इन्वायरमेंट में, एक अननोन इन्वायरमेंट में लेकर जाता है, बिकॉज यूनिवर्स नोज दैट यू देन ओनली विल बी एबल टू अनलॉक योर फुल पोटेंशियल. तो यूनिवर्स का ये प्लान है. ट्रस्ट दिस यूनिवर्स प्लान, ट्रस्ट द इंटेंशन ऑफ द यूनिवर्स, ये आपके लिए गाइडेंस है. All right, so don't be afraid of change, don't be afraid of transformation, don't be afraid of trying new things out, because that's how you will evolve into the perfect being. All right, then that's how you will go towards 10 of Pentacles, जो कि abundance का है, जो कि ये 10 of Pentacles ये पहला कार्ड जो आया था, तभी आप यहाँ पहुँच पाओगे. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. Astrologically अगर हम देखें तो I would say that yes, Virgo sign हो गया, even स्कॉर्पियो हो गया, पाइसीज हो गया, कैंसर साइन हो गया, इनमें आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. वर्गो में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु पुष्य श्लेषा, वर्गो में उत्तर फल्गुनी हस्ता चित्रा, स्कॉर्पियो में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, पाइसीज में उत्तर भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा एंड रेवती पाइसीज में होते हैं. ऑल राइट, इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके D1, D12 या D9 नवंबर चार्ट में कोई ना कोई प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. फोर्थ लॉर्ड कैन बी इन द 12th हाउस, फोर्थ लॉर्ड कैन बी इन द 9th हाउस, फोर्थ लॉर्ड कैन बी इन द 3rd हाउस. ऐसी प्लेसमेंट में फोर्थ लॉर्ड होगा जो कि घर, रेजिडेंस को रिप्रेजेंट करता है. इन प्लेसेस में होगा जो कि शो करता है घर बार छोड़ के आप एक फार अवे प्लेस पर जाएंगे. राहु केतु 4 10 हाउसेज में हो सकते हैं, मतलब राहु 4th हाउस में हो या केतु 4th हाउस में हो, है ना. फर्स्ट 7 हाउस में राहु केतु हो सकता है. दिस कैन हैपन. ऑल राइट, एंड इवन जैसे कि वीसी के जुपिटर मून का कंजंक्शन हो. जुपिटर मून कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर. सैटर्न मून का कंजंक्शन हो, सैटर्न मून कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर. या मून 10th हाउस में हो, तो ये प्लेसमेंट्स भी शो करते हैं कि घर बार छोड़ना पड़ेगा, करियर की वजह से ट्रैवल होगा. राहु केतु में से कोई एक प्लैनेट जो है वो 1st हाउस, 5th हाउस या 9th हाउस में हो, जो कि अगेन शो करता है यू विल फाइंड ग्रेट सक्सेस व्हेन यू गो अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस, देन ओनली यू विल फाइंड ग्रेट सक्सेस इन लाइफ एंड करियर, है ना. तो ये प्लेसमेंट्स यही शो करते हैं कि घर छोड़कर दूर आप जाएंगे. अगर मून 10th हाउस में और आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तब यही शो करता है मून इन द 10th हाउस की या तो फूड बेवरेज से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते होंगे, फूड एंड कंट्रोल में काम करते होंगे, या आप जो हैं आपका जॉब ट्रांसफरेबल होगा, बार बार ट्रांसफ़र होगा जॉब में, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे जॉब्स में. ऐसा मून इन द 10th हाउस, सैटर्न मून का कंजंक्शन, मून ट्राइन फ्रॉम सैटर्न, यही शो करता है ये सारी प्लेसमेंट्स. सो ये प्लेसमेंट्स होगी आपके चार्ट में पाइल नंबर 2. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक दिस वीडियो रीडिंग एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड अगेन जो आत्मा कारक प्लैनेट हो वो मून हो सकता है, सैटर्न हो सकता है या जुपिटर होगा,
इनमें से कोई एक प्लैनेट आत्मा कारक प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज सिग्निफाइंग यू. इफ you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose the Trust the Call card, or you pick this pile according to your date of birth. आपका birthday 3/6/8/12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28 को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. Universe's plan for you next in career, finance, relationship, personal life. So क्या firm resolve है, क्या clear purpose है पाइल नंबर 3 के लिए यूनिवर्स का? क्या इंटेंट, क्या इंटेंशन है यूनिवर्स का पाइल नंबर 3 के लिए? सबसे पहले करियर के लिए कार्ड पुल करते हैं. ओके, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओह माय गॉड, अभी ना जो पाइल नंबर 2 था उसके अंदर भी सबसे पहला कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स था. आपके लिए भी सबसे पहला कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स है. सो आई फील दैट यू गाइज वर वेरी मच अट्रैक्टेड टू दिस कार्ड एज वेल एज दिस कार्ड, बट समहाउ यू डिसाइडेड ऑन द pile 3 only. So if you have time and energy, do go watch pile number 2 as well, because उससे भी आप बहुत ज़्यादा connect कर पाएंगे. So yeah. So we have the 10 of Pentacles, which shows that universe wants you to achieve materialism, want you to achieve materialistic substance, materialistic things, wants you to get that, money in. Universe wants you to live a luxurious life. Universe wants you to get the best of best things. Maybe आप अगली लाइफ टाइम में या इस लाइफ टाइम की एंड तक अपने जो है सारे इच्छाएं, मटीरियलिस्टिक इच्छाएं पूरी करते हो, और उसके बाद यू गो टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी. उसके बाद आप कहीं ना कहीं एक हायर डायमेंशन में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आपकी खुद की मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स पूरी ही नहीं हुई. तो जब तक मटीरियलिज्म पूरा नहीं होता, जब तक इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब तक इंसान स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर सकता है. वो मतलब अगर आप एक बोट स्पिरिचुअलिटी की है, दूसरी बोट मटेरियलिज्म की है, दुनियावी है, आप दोनों में पैर रख कर नहीं चल सकते हो. सो आपको एक पाथ पिक करना पड़ता है. सो 10 ऑफ पेंटिकल्स शोज द यूनिवर्स वांट्स यू टू कंप्लीट every materialistic desires of yours, so that you are able to connect with the universe, so that you are able to connect with the divine. आप फिर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करें. आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, ये यूनिवर्स कहता है. इनमें से एक ही आप पिक करेंगे, और पिक भी आप मटेरियलिस्टिक चीज़ को ही करेंगे, ये पहले दिखता है. इच्छाएं आपकी हैं, आप बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग्स चाहते हैं. आप बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, आप फ़ोन लेना है तो फ़ोन भी महंगा से महंगा, मतलब बेस्ट से बेस्ट चाहते हैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स ये शो करता है आपके चार्ट में वीनस राहु का कंजंक्शन हो गया. वीनस राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर होगा, जो कि एक मिलियनेयर बनने का कॉम्बिनेशन है. एंड या सो 10 ऑफ पेंटिकल्स यही. वैसे अगर वीनस केतु कंजंक्शन है या वीनस केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, ये ट्रिलियनेयर बनने का कॉम्बिनेशन है. बट वीनस केतु ये कहता है कि जब तक तुम्हें वैराग्य नहीं है पैसों से, मटीरियलिज्म से, तब तक मैं पैसे दूंगा ही नहीं. दिस इज़ वॉट वीनस केतु सेज. बट वीनस राहु कहता है कि तुम जितना पैसा करोगे, हाई पैसा और चाहिए और पैसे चाहिए, उतना मैं पैसे दूंगा. वीनस राहु इज़ लाइक दिस. तो युति होगी, वीनस राहु कंजंक्ट होंगे एक साथ, या फिर ट्राइन में होंगे, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे वीनस राहु. हो सकता है वीनस केतु कंजंक्ट हो या वीनस केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो. फंडा ये है वीनस केतु का, मैंने कहा कि जब आपको वैराग्य आता है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी की इच्छा नहीं होती है, तो आपको बहुत सारे पैसे आ जाते हैं. जब आपकी इंटेंशन ये है कि दैट आई वांट टू हेल्प अदर पीपल, ऑटोमेटिकली वर्क विल कम इन एंड मनी विल ऑफ कोर्स कम इन एंड यू बिकम वेल्दी. बट आई डू फील पाइल नंबर 3 मेनी ऑफ यू हैव वीनस राहु कंजंक्शन, वीनस ट्राइन फ्रॉम राहु, जो कि यही शो करता है मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स आपकी काफ़ी सारी है, और पैसे भी आप अच्छे कमा लेंगे. 10 ऑफ पेंटिकल्स यही है कि करियर वाइज सक्सेस आपको ज़रूर मिलने वाला है अभी से 10 डेज फ्रॉम नाउ, या आई वुड से दैट विद इन अ मंथ और सो आपको प्रमोशन मिले, आपकी करियर लाइफ में बेटरमेंट होगा,
आपका कोई someone who is older than you, older in age, someone who has white hair, all right, they somehow give you some wonderful advice, or they come and give you the promotion, or gives you a better paycheck, or gives you a better position. So you guys are going towards betterment in career, prosperity or abundance in career. Literally 10 of Pentacles shows abundance in every aspect of life, चाहे घर परिवार है, चाहे मनी है, करियर है, पावर है, नेम है, पोजिशन है, गुड हेल्थ है ना, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को लेकर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि अबंडेंस को शो करता है. हर एस्पेक्ट में भरपूरता की महसूसता आप करते हैं जो कि अबंडेंस है. तो ये यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए. यूनिवर्स वांट्स यू कि आप जो एक मटेरियलिस्टिक लाइफ है वो बहुत अच्छी जिए. ये यूनिवर्स का प्लान है. आपकी सारी वो इच्छाएं पूरी कराएगा यूनिवर्स. जो मटीरियलिस्टिक इच्छाएं हैं वो ज़रूर यूनिवर्स सारी पूरी कराएगा, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. जल्द ही विद इन 10 डेज़ और 10 डेज़ फ्रॉम नाउ या विद इन अ मंथ आपको जॉब में अगर आप हैं तो प्रमोशन मिल जाएगा, बेटर पेचेक मिलेगा, बोनस मिलेगा. इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन बिजनेस तो बिजनेस में आप बहुत हाइट्स तक पहुँच जाते हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. नए प्रोजेक्ट्स करते हैं और उससे आप बहुत ज़्यादा गेन करते हैं. बट 10 ऑफ पेंटिकल्स शोज मेनी ऑफ यू वांट टू हैव योर ओन बिजनेस, वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. ये एक इच्छा, इस प्रति आप विद इन अ मंथ या विद इन 10 डेज़ वर्क करना शुरू कर देते हैं और आपको सक्सेस, आप बेसिकली सक्सेस के रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है और जल्दी उसको अचीव भी कर पाते हैं. देन वी हैव एस ऑफ कप्स. जो भी ये करियर या आपके पैशन से रिलेटेड है, आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है. ऑलराइट, ऐसा हो सकता है कोई आप हैंडमेड चीज़ों का बिजनेस करना शुरू करते हैं, कुछ बड़ा दिल है जिसमें आपका उससे रिलेटेड आप बिज़नेस करना शुरू करते हैं. ओवरसीज़ ये बिज़नेस आप करेंगे, मतलब अपने बिज़नेस को आप फॉरेन कंट्रीज़ भी पहुंचाएंगे, ये यहाँ पर शो होता है. शुरुआत करेंगे. 10 नंबर रिप्रेजेंट्स एंडिंग ऑफ समथिंग एंड बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू. एस मीनिंग 1, राइट. सो एस रिप्रेजेंट स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू, बिगिनिंग ऑफ समथिंग जिसके प्रति आप बहुत पैशनेट हो. जो भी आप चीज़ क्रिएट करो, पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट particular thing, and people are really appreciating what you are doing, because what you are doing, it is very marvelous, it's very beautiful, it's very unique. So people want this, they would want to buy it from you. People will realize what you are doing is, it's very very valuable, या इसका कोई, या ये अमूल्य है. All right, you are providing some service or you are selling something and it's wonderful. पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट. कहीं ना कहीं आप अपना खुद का एक सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाते हैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, और वहाँ ये चीज़ दिखाते हैं. पीपल बाय इट फ्रॉम योर वेबसाइट और फ्रॉम देयर, आप लोगों को अपना चीज़ दिखाते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है. एंड कहीं ना कहीं नेम फेम भी आपको मिलना शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पर. मरकरी मार्स का कंजंक्शन हो सकता है. मरकरी मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, या मरकरी मार्स जो है 3-11 प्लेसमेंट में हो सकता है. जैसे अगर मार्स असेंडेंट में है तो मरकरी 3rd या फिर 11th हाउस में प्लेस्ड होगा. 3-11 प्लेसमेंट में हो सकता है मरकरी मार्स एक दूसरे से, जो कि अगेन आपको एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर बना देता है, फेमस इन्फ्लुएंसर बना देता है ऐसा कॉम्बिनेशन. तो ये भी आपके चार्ट में होगा, ऐसी प्लेसमेंट्स होगी, चेक करना मिलेगी. एंड दैट्स वाई आपको ऐसा यू फाइंड दैट सक्सेस इन लाइफ. आई डू सी दिस. यही यूनिवर्स का प्लान है. एंड आफ्टर अचीविंग दैट आपको ना शांति और अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि you know that people respect you, will see that people will start to give you respect because you will start to earn very good amount of money. तो जब आप पैसे बहुत अच्छे कमा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी आपको इज्जत देना शुरू कर देती है. You know it, and you just realize at times that there are so many people out there who are just fake, who just want to impress me and want to take away my money. तो आप कहीं ना कहीं अकेला रहना भी, आइसोलेटेड रहना भी ज़्यादा पसंद करना शुरू करते हैं, नेचर के साथ रहना पसंद करते हैं. और आप अपना घर भी नेचर के पास ही बनाएंगे, दूर अपना, मतलब अपने डाउनटाउन से दूर अपना घर बनाएंगे, आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी में अपना घर बनाएंगे जहाँ नेचर की ब्यूटी हो, जहाँ कोई लेक, पॉन्ड, रिवर हो, ऐसी जगह पर आप अपना घर बनाएंगे, ऐसा दिखता है. देन वी हैव किंग ऑफ पेनिकल्स. किंग ऑफ पेनिकल्स इज कमिंग फॉर योर मनी. सो मनी अगेन आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, और वो रियल एस्टेट किसी वाटर बॉडी के पास होगा जहाँ से पहाड़ भी दिखते हों. दिस कैन हैपन. लाइक इन चंडीगढ़ देर इज सुखना लेक एंड वी कैन इवन सी माउंटेन्स. सो
ऐसी जगह पर आप रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ नेचर की बहुत ब्यूटी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी शो करता है दैट आपके पास बहुत सारा मनी है और आप डेडिकेशन से मनी अर्न करते हैं, दिल लगाकर मनी अर्न करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे आपका मन दुख पाता है, तंग पाता है कि अरे सुबह हो गई, आप काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। लाइक यू विल बी लाइक ओ सुबह हो गई, लेट्स डू वर्क, लेट्स अर्न मनी, इट्स अ न्यू डे, न्यू अपॉर्चुनिटीज टू अर्न मनी, लेट्स डू इट। यू आर गोना बी लाइक दिस, क्योंकि we see the sunflower which shows happiness. We see the sunflowers here, so there's a lot more happiness in work. King of Pentacles gives me this message that you guys are gonna earn very good money. घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो आप उंगली टेढ़ी भी कर लेते हैं। डेडिकेशन के साथ और इवन कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा मनी अर्न करेंगे। मनी भी कंसिस्टेंसी में अर्न करेंगे, मतलब बहुत अच्छा मनी एवरी डे आप अर्न करेंगे। खुद का बिजनेस करेंगे, एवरीडे अर्निंग आपके पास आएगी, ये यहाँ पर दिखता है। समथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, सो वी हैव द एम्परर कार्ड। एम्परर इज अ सिंगुलर एलिमेंट, ऑल राइट। एम्परर रिप्रेजेंट्स द साइन ऑफ एरीज। एम्परर सन को रिप्रेजेंट करता है और सन एरीज में ही एग्जॉल्टेड होता है। एरीज साइन या सन, ये दोनों सिंगुलर एनर्जी है, प्लूरल नहीं है, यानी वो एक ये चीज़ एक को ही रिप्रेजेंट करती है। तो अभी लव लाइफ को लेकर कुछ खास यहाँ इंडिकेशन नहीं है। एम्परर यही शो करता है कि आप जब आपके पास एक सीट ऑफ पावर होती है, जब आप बहुत अच्छा स्टेबलाइज हो जाते हैं अपनी लाइफ में, करियर वाइज, फाइनेंशियली, तब लव रोमांस आता है। All right, the emperor here is just waiting for the empress or is waiting for the queen to come. If you're if you're a female watching this reading, you are a queen waiting for your king. All right, so emperor again here is showing that you're just waiting for the right person to come. अभी भी वो right person आपकी life में नहीं आए हैं, you haven't met the right one yet. ऑल राइट, एंड अभी अगेन फोकस जो है पर्सनल लाइफ में भी खुद की तरफ है, सेल्फ के प्रति है। मैंने कहा सन इन एरीज, आपका लिटरली सन इन एरीज हो सकता है। सन इन एरीज अगर जैसे अश्विनी नक्षत्र, भरणी एंड कृतिका नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र एरीज साइन में होता है, तभी हर एक एरीज इंडिविजुअल एक जैसा नहीं होता है। तो अगर आपका सन अश्विनी में है तो ये शो करता है यू एंड योर फादर, बिकॉज सन इज ऑल्सो फादर्स, वेयर सन इज ऑल्सो योर सोल। नेचुरली सन एक सोल सिग्निफिकेटर प्लैनेट भी है। चरा आत्मा कारक भी एक चीज़ होती है, एंड देन आत्मा कारक नेचुरल जो होता है वो सन होता है सभी के चार्ट में। तो सन आपकी सोल को सिग्निफाई करता है, सन आपके फादर को भी सिग्निफाई करता है। तो हो सकता है आपका सन एरीज में असेंडेंट में हो, स्पेशली अगर आपका सन पाइल नंबर 3 एरीज में, स्पेशली अश्विनी नक्षत्र में, तो यही शो करता है यू एंड योर फादर आर गोना बी हेल्थ कॉन्शियस, फिटनेस कॉन्शियस पीपल। यू गाइज विल वॉक फास्ट, टॉक फास्ट, सीट फास्ट में, ड्राइव कार फास्ट, विल लाइक टू डू थिंग्स क्विकली। आयुर्वेदिक मेडिसिन में आप इन्वॉल्व हो गए, मेडिसिन हीलिंग से रिलेटेड चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहेंगे, हेल्थ कॉन्शियस इन नेचर होंगे, विल लव टू ट्रैवल टू प्लेसेस वेदर टॉल बिल्डिंग्स और माउंटेन्स। अगर ये सन भरणी नक्षत्र में तो ये शो करता है your father will teach you with a stick. Your father will be very, very strict towards you. Both you and your father are going to be the people who would want to provide justice to other people, cannot see injustice happening. अगर सन जो है कृतिका नक्षत्र में, तो यही शो करते हैं you are the people who will critically analyze everything. कृतिका critical, तो critical analysis करने वाले आप लोग होंगे, फादर भी और आप भी। हर चीज़ में गलतियाँ निकालना और उस चीज़ को परफेक्ट बनाने में आप बहुत अच्छे होंगे। ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी। कहीं ना कहीं कुकिंग में भी अच्छे होंगे। You guys will know how much salt and pepper should be added into the curry. There's always extra layer of butter and ghee over the food whenever you guys cook. तो एम्परर पर्सनल लाइफ में तो यही शो करा है कि सेल्फ के प्रति आपका सबसे ज़्यादा ध्यान जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट प्लानिटरी प्लेसमेंट्स यू हैव। पाइल नंबर 3 इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो यूनिवर्स का प्लान है पर्सनल लाइफ को लेकर वो यही है कि आप अपने फिटनेस ऑफ द बॉडी पर ध्यान दोगे। भाई मेरे बाल सेट है कि नहीं, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं मुझ पर या नहीं, मैं प्रेजेंटेबल दिख रही हूँ या नहीं। सक्सेसफुल होने के लिए आप सक्सेसफुल दिख भी रहे हैं, ये दिखता है, मतलब आप हैंडसम होते जा रहे हैं, ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं, अपने ऊपर आप ध्यान देना शुरू कर चुके हैं। भाई व्हाट यू ईट इज़ व्हाट यू बिकम। तो आप खाने पीने पर भी अच्छा फ्रेश फूड खाने की ज़्यादा आपके अंदर कोशिश रहती है, हेल्दी फूड या फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप ज़्यादा खाते हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड यू रियली ट्रूली रियलाइज्ड कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ गुड होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तब हम काम भी अच्छा कर पाते हैं।
मूड भी हमारा अच्छा रहता है ना. तो फिजिकल फिटनेस पर फोकस जा रहा है यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है. मैनी ऑफ यू आर बाइंग न्यू क्लोथ्स और यू आर चेंजिंग योर हेयर स्टाइल और पुटिंग हेयर कलर, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. विद इन 4 days और विद इन 4 weeks आप ये चीज़ें कर रहे हैं. समथिंग मोर इफ वी कैन गेट फॉर पाइल नंबर 3. क्या यूनिवर्स का प्लान है पाइल नंबर 3 के लिए, क्या इंटेंट है, क्या इंटेंशन है. सो वी हैव अर्थ, इट सेज ग्रोथ. सो अर्थ की चीज़ यानी अर्थ के रिसोर्सेज यानी मटीरियलिज्म पर फोकस. ऑलराइट, सो अर्थ की सारी सुख सुविधाएं आपको मिलेगी, ये यूनिवर्स का प्लान है. ऑलराइट, एंड अर्थ कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आप डाउन टू अर्थ हम्बल इंडिविजुअल भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, आप ऑलरेडी हैं. ऑलराइट, देन वी हैव मून हेयर विच शोज दैट मून कहीं ना कहीं अर्थ साइंस में हो सकता है, टॉरस वर्गो या कैप्रिकॉर्न में आपका मून हो सकता है. मून 2nd 6th या 10th हाउस में होगा आपके चार्ट में. मून इट शोज साइकिल्स हेयर, सो इट डज शोज कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. लाइफ बोरिंग नहीं होती है आपकी, कुछ ना कुछ जीवन में चलता ही रहता है. एंड समहाउ यू मे इवन फील लाइक कि कभी करियर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, करियर ठीक है तो परिवार में फाइट आर्ग्यूमेंट हो जाता है, करियर परिवार ठीक है तो हेल्थ खराब हो जाती है, हेल्थ ठीक है करियर अच्छा तो परिवार में कोई फाइट आर्ग्यूमेंट हो जाता है. कुछ ना कुछ चलता ही रहता है आपकी लाइफ में. ये मून शो कर रहा है. और मून यहाँ पर ये भी शो करता है दैट कहीं ना कहीं घर बदलना, एक घर से दूसरे घर में जाना, या ट्रैवल करना, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप जाएंगे विद इन 1 month, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. मून से कहीं ना कहीं फैसिनेशन भी है. यू मे लव टू डू मून गेजिंग, स्टार गेजिंग, या यू मे लव टू वॉच सनराइज और सनसेट, इनमें से कोई एक चीज़ है ना, ये भी नज़र आ रहा है. मून ये शो करता है दैट somehow mother becomes very religious spiritual in nature, या mother already religious spiritual in nature है, mother कोई pilgrimage travel करती है जल्द ही. so एक ये भी indication है. all right, and harvest season is coming in, ये भी एक information है. harvest season is coming in for you, मतलब आपके hard work जो आपने करा है उसका sweet fruit अब आपको मिलने वाला है. Then we have Pisces. It says intuition. So Pisces here shows that you are becoming more intuitive, you are becoming more inward as well. कहीं ना कहीं टेरो मिस्टिसिज्म में आपका इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं आप अच्छा सोच विचार करते हैं. लाइक यू आर फोकसिंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव पार्ट. जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में आने लगता है, आप उसे उसी समय हटा देते हैं और पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं. आप अपने सबकॉन्शियस के लिए, आप पीस ऑफ माइंड के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें भी करते हुए नज़र आ रहे हैं. पाइसिस डोनेशंस भी होता है, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेसेस में आप मनी भी डोनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं. All right, then we have the miser. It says entrepreneurial or creative ability to turn anything to gold, delight in sharing life's riches. तो अभी हम यही बात कर रहे थे एस ऑफ कप्स में और 10 ऑफ पेनिकल्स में कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, आप खुद का कोई बिजनेस करना शुरू कर रहे हो जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को यूज़ करके किसी भी चीज़ को गोल्ड बना सकते हो, यानी किसी भी चीज़ को बहुत बहुत वैल्यूएबल बना सकते हो. रॉ मटेरियल लेकर, जो रॉ मटेरियल जो इतना मतलब वैल्यू नहीं रखते हैं, ऑलराइट, उससे कुछ बहुत वैल्यूएबल चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो एंड पीपल आर लविंग व्हाट यू आर डूइंग, पीपल वांट टू बाय दोज थिंग्स फ्रॉम यू. All right, and you're also again sharing your life's riches. Again वही Pisces sign जो अभी बात कर रहे थे, donations आप दे रहे हैं, you're sharing your riches. Then we have athlete. It says dedication to transcending physical limits, including handicaps, development of personal willpower and strengths of spirit. So maybe some of you guys deal with some kind of handicap in life. Irrespective of that, you are developing some personal willpower, you are developing strength in your spirit, and through which आप मुश्किल से मुश्किल पहाड़ जैसी प्रॉब्लम को भी पार कर पाते हैं. स्टैमिना आपके अंदर नज़र आ रहा है टू अचीव सक्सेस, टू वर्क इन अ कंसिस्टेंट वे. इसके लिए भी स्टैमिना चाहिए. हर रोज़ काम करने के लिए, हर रोज़ कॉन्सेंट्रेट करने के लिए भी स्टैमिना चाहिए, राइट? तो वो आप बिल्ड कर रहे हैं.
हर रोज़ आप काम कर रहे हैं, एक भी दिन ब्रेक नहीं ले रहे, संडे के दिन भी आप ब्रेक नहीं ले रहे, आप काम करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टैमिना बढ़ रहा है काम करने का, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कोई भी हैंडीकैप है, कोई भी मतलब हार्डशिप आती है, उसको भी आप पार कर जाते हैं। क्योंकि हम एरीज साइन की बात कर रहे थे ना, एम्परर के साथ सन इन एरीज की हम बात कर रहे थे, या कोई और प्लैनेट भी आपका एरीज में हो सकता है। पाइल नंबर 3 जो कि यही शो करता है, एरीज इज अबाउट माउंटेन रैम। माउंटेन रैम की यही क्वालिटी की है कि जितना मर्जी स्टीप चढ़ाई हो, पहाड़ हो, ऊंचा से ऊंचा पहाड़ क्यों ना हो, स्टीप से स्टीप पहाड़ क्यों ना हो, चढ़ाई क्यों ना हो, जिगजैग करके चढ़ ही जाती है आखिर। तो वो वही चीज़ कहीं ना कहीं आप में है पाइल नंबर 3, कि जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, पहाड़ जैसी बड़ी मुश्किल हो, अपनी कंसिस्टेंसी से, अपने डिसिप्लिन से, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से आप उस चीज़ को अचीव ज़रूर करते हैं। एंड यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स, यू आर नॉट। बहुत आपके अंदर करेज दिख रहा है। देन वी हैव ब्लेसिंग्स, so blessings are showering upon you, the universe is with you, so trust the process, all right? यूनिवर्स को आपको ट्रस्ट करना चाहिए। देन वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी, बी मोर फ्लेक्सिबल। अब ये जो चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक्सेप्ट करना है, ये भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करता है कि आप कितना फ्लेक्सिबल हो। कई लोगों से तो ऐसा होता है, मैंने देखा है कि कई लोग कहते हैं कि हम जो हैं, जैसे होटल के कमरे में अगर किसी टाइम सोना पड़ जाए तो नई जगह पर नींद ही नहीं आती है, या हम अपने ही बेडरूम में, अपने ही बेड पर, अगर हमारा एक पर्टिकुलर जगह है, हमारा लेट्स से लेफ्ट साइड पर हम हमेशा सोते हैं, अगर हम राइट साइड पर सोने की कोशिश करते हैं, हमें नींद ही नहीं आती है। इसको क्या कहेंगे? इसको रिजिड होना कहेंगे। मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकल लेवल पर रिजिड होना कहेंगे इसको। आप देखते होंगे जैसे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, जैसे हमारे मोदी जी, वो किसी ना किसी कंट्री, किसी ना किसी जगह पर जाते ही रहते हैं, या इवन एक्टर एक्ट्रेसेस भी। अभी मैं प्रियंका चोपड़ा जी का देख रही थी, वो हर रोज़ कोई नई इवेंट में जा रहे हैं। अभी वो किसी और कंट्री में थे, अभी वो भारत आए हुए हैं, वो दुर्गा पूजा में भी एक्टिव हैं, उधर भी है, फिर अगले दिन वो कहीं और भी हैं। सो इमेजिन दीज एक्टर एक्ट्रेसेस, और इमेजिन दीज पॉलिटिकल लीडर्स जो एक जगह से दूसरी जगह जो हर रोज़ ही मतलब जा रहे हैं। तो क्या ये सोना छोड़ देते हैं? क्या ये खाना पीना छोड़ देते हैं? ये सब चीज़ें करते हैं क्योंकि ये इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। हम वो क्यों नहीं बन पा रहे? हम वो एक्टर एक्ट्रेस क्यों नहीं बन पा रहे? हम नेक्स्ट मोदी क्यों नहीं बन पा रहे? हम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन पा रहे? इन्हीं कारणों से नहीं बन पाते, क्योंकि वी आर नॉट रेडी टू चेंज, वी आर नॉट रेडी टू ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ। जब तक हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म ना करें, चेंज ना करें, हम दुनिया को नहीं बदल सकते। हम दुनिया में नई बदलाव लेकर आ सकते हैं। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। तो जितना फ्लेक्सिबल होते जाते हैं, यूनिवर्स इज मेकिंग यू फ्लेक्सिबल ओनली। मून कार्ड भी यही शो करते हैं, इट रिप्रेजेंट साइकिल्स ऑफ लाइफ। सर्दी, गर्मी, स्प्रिंग, ऑटम, रेनी सीजन, मतलब इट रिप्रेजेंट्स चेंजेस, राइट? मून रिप्रेजेंट्स चेंजेस। मून तो खुद बदलता रहता है, कभी क्रेसेंट मून है, कभी फुल मून है, कभी नो मून है। लाइक मून इज एवर चेंजिंग, राइट? सो ये कार्ड, इवन पाइसीज को अगर आप देखें, एक फिश किसी डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी फिश किसी और डायरेक्शन में जा रही है। इट्स अबाउट चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ माइंड सेट। यू आर दैट पर्सन, पाइल 3, जिसके लिए चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू आर दैट पर्सन जो प्लान्स फॉलो नहीं कर सकता। अगर प्लान बनाए भी, 12 घंटे से ज़्यादा वाला प्लान आपसे फॉलो ही नहीं होगा। मरकरी असेंडेंट में है, मरकरी सेकंड हाउस में, मरकरी जुपिटर का कंजंक्शन है, मरकरी जुपिटर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है। यू आर द पर्सन जो अपने अगर 1 महीने का प्लान बनाया ना, उसको फॉलो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि चर्निंग ऑफ ब्रेन इतना ज़्यादा है कि रात भर आप सोचते रह जाओगे कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अगले दिन वाला प्लान ही बदल जाता है, ऑल्टर हो जाता है। 12 घंटे से ज़्यादा आपको वैसे भी प्लान नहीं करना चाहिए और फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, और यूनिवर्स आपको फ्लेक्सिबल बनाकर ही छोड़ेगा, ये दिखता है। ऑलराइट, चेंज ऑफ प्लान्स होते रहेंगे और आपको उस चेंज में ढलना पड़ेगा, एंड तभी यू विल फाइंड ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। We have magic card. Magic here shows that you will feel that there are certain things which are happening in my life and वो बड़ी magical है। मतलब
कई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है, आपको लगता है ये चीज़ तो कभी हो ही नहीं सकती, और वो चीज़ हो जाती है एंड यू फील दैट दिस इज़ वेरी मैजिकल. देन वी हैव रेस्ट कार्ड. रेस्ट कार्ड ये शो करता है कि जहाँ मौका मिले रेस्ट करने का कर लो. ये मत सोचो मैं अपने कमरे में जाकर रेस्ट करूँगा, उस जगह पर रेस्ट करूँगा, फलाना ढिमकाना तरीके से रेस्ट करूँगा. नहीं, जहाँ जगह मिलती है वहाँ रेस्ट कर लो. ये गाइडेंस भी आपके लिए आ रही है somehow. All right, last but not the least, we have the surrender to receive. Absolutely yes. आपका कई जगह पर जोर चलेगा ही नहीं. जो आपने प्लान करा था वैसे वैसे चीज़ें चलेगी ही नहीं. चलेगा तो यूनिवर्स का प्लान चलेगा बस. तो सरेंडर टू रिसीव. इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड ग्रेट सक्सेस, यू वॉन्ट गेट ग्रेट सक्सेस इन लाइफ, सरेंडर. जो काम सामने आता है कर दो उसको, निपट लो उससे. जो आता है काम सामने उसे दिल लगा कर दो बस. सरेंडर टू रिसीव, दैट्स हाउ यू विल अचीव सक्सेस. खुद के प्लान आपके इतने कुछ खास नहीं है, यूनिवर्स का प्लान बेटर है. तो जो यूनिवर्स आपसे कराता चला जाता है या जो भगवान डिवाइन आपसे कराता चला जाता है, करते चले जाओ. वो कराने वाला है और आप करते चले जा रहे हैं. वो करन करावन हार है और आप करते चले जा रहे हैं. All right, that's it. So yeah, this was it. This was the reading for you, pile number 3. All right, and यहाँ पर भी वी सी कि भाई जो राजा होता है वो एक ही होता है एंड यू आर द किंग. नो वन एल्स कैन टेक अवे योर पोजिशन. सो नेवर फील कि कोई आपकी जगह ले लेगा. ऐसा नहीं होगा. डोंट बी क्या कहे, डोंट बी जैसे इंदिरा जो है, इंदिरा के बारे में कहा जाता है ही यूज्ड टू कीप एन आई ऑन हिज कंपेटिटर्स, क्योंकि उनको लगता था मेरी सीट कोई छीन लेगा मुझसे. सो डोंट टेक इंदिरा एज अ पर्सन, टेक इंदिरा एज अ पोजिशन. इंदिरा की पोजीशन पर मत बैठिए. इतना जो है आप पोजीशन को लेकर पॉजेसिव मत हुई है, क्योंकि वो पोजीशन आप ही की रहेगी, कोई और आपसे छीनेगा नहीं. ऑल राइट. सो आप जो कर रहे हैं, आप जैसा काम या आप जो है वो और कोई बन नहीं सकता. सो डोंट वरी, डोंट बी इनसिक्योर अबाउट योर पोजीशन. ये भी गाइडेंस है. सो या एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो हाँ, साइन ऑफ पाइसिस, साइन ऑफ टॉरस, साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ लियो, साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका स्पिल करता है, टॉरस में रोहिणी, मृगशिरा, लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. इवन वर्गो साइन में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. वर्गो में उत्तर फल्गुनी, हस्त, चित्रा. कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में, इवन एक्वेरियस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. एक्वेरियस में धनिष्ठा, शतभिषाक एंड पूर्व भद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12, D9 वंश चार्ट में आपके कोई ना कोई प्लांट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. एंड इवन जैसे सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, सन हो गया, इनमें से कोई एक प्लानट आपका आत्माकारक प्लानट होगा. प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज सिग्निफाइंग यू. सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन हो सकता है. सैटर्न जुपिटर कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि धर्मादि कर्मादि योग फॉर्म कर रहे हैं. ऑलराइट. सन केतु का कंजंक्शन भी हो सकता है. सन केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो ध्वज कीर्ति योग या फिर कीर्ति ध्वज योग, वैसे तो ध्वज कीर्ति कहते हैं. सन केतु कंजंक्शन ये हो सकता है, जो कि ये शो करता है केतु इज द ध्वज, केतु इज द बेसिकली द फ्लैग, और सन गवर्नमेंट है. तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आपके फादर गवर्नमेंट में काम करते हो, या आप और आपके फादर गवर्नमेंट में काम करते हो, ऐसी जगह पर काम करते हो जहाँ पर नेशनल फ्लैग हो. This can happen. So yeah, that was pretty much it. And it also makes you quite humbled individual. It makes you very, very humble. Sun Ketu conjunction, it makes you humble. So yeah, that was pretty much it for you. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you. तो जो मैंने साइंस नक्षत्रास बताए, इसमें D1, D12 है, D9 वंश चार्ट में आपके कोई ना कोई प्लांट जरूर प्लेस होंगे. So yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading, nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.